संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, क्या आप कभी ऐसे कष्टों से गुजरे हैं जहां हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा दिखता है?
आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं करिश्मा यादव जी से, जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से हैं। एक समय था जब करिश्मा जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। घर में क्लेश, पढ़ाई में असफलता और परिवार की गंभीर बीमारियां उनके जीवन को अंधकारमय बना चुकी थीं। लेकिन फिर उनके जीवन में एक चमत्कारिक मोड़ आया। एक महान संत की शिक्षाओं ने उनकी दिशा बदल दी। केवल भक्ति से ही उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को मात दी। उनकी मां, जो हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। और करिश्मा जी, जिन्हें पढ़ाई करने में असंभव कहा जाता था, आज कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं करिश्मा जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। जी नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? करिश्मा यादव। करिश्मा जी, आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ जिले से हूँ। करिश्मा जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? 11/6/2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थीं? यही देवी देवताओं की बहुत भक्ति किया करती थी, और पापा जी मतलब पूर्वजों से जो चल रहा था भक्ति, उस पे बहुत ज़्यादा मैं भी मतलब ध्यान देती थी। मैं भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ही लगन था मुझे, और शिव जी का उपवास रखना, ये सभी भक्ति किया करती थी। पर इनसे कोई भी मुझे लाभ नहीं होता था। घर में कलेश, लड़ाइयाँ, झगड़ा ये सब पड़े ही रहते थे, कभी भी ख़त्म नहीं होते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज जी का पता एक उनके शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के, सुनील नाम है उन भगत जी का, वो शिष्य जी का। वो हमको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का भक्ति करने से ना हमें घर का जितने भी कलेश है, लड़ाई झगड़ा जो भी हो रही हैं, ये सभी समाप्त हो जाएंगे। उनके कहने पे हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत परेशान थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने आपको बताया कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाएंगी तो आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? क्या अनुभव रहे आपके? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से ना मुझे इतना लाभ हुआ कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी। संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत ही लाभ मुझे प्राप्त हुआ है। पहले तो मैं जब छोटी थी, मैं पढ़ाई वढ़ाई करती थी, उस समय ना क्या बोलते हैं, मैं अच्छा खासा पढ़ नहीं पाती थी। मैं वीक थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में गधी थी। मुझे क्लास में सब कोई कहा करते थे कि तुम कभी भी पढ़ नहीं पाओगी और आगे नहीं बढ़ पाओगी। मेरे को टीचर तक भी बोलती थी कि तुम 10 क्लास को कभी पार नहीं कर पाओगी। पर परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज 10 क्लास भी कंप्लीट करके 12 क्लास भी कंप्लीट की, और आज मैं 2nd ईयर हूँ, कॉलेज कर रही हूँ परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी मम्मी को ना काला पीलिया हुआ था, और इसको हेपेटाइटिस बी भी बोला जाता है। इसमें ना बहुत ज़्यादा हमने बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया, फिर भी कोई भी हमें फ़ायदा नहीं हुए, क्योंकि डॉक्टर लोग देखते तो थे और दवाई दे दिया करते थे, फिर भी उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। हरदम मम्मी परेशान, और न कम से कम वो ना खाना पीना सब कुछ छोड़ दी थी, या घर में बिल्कुल बेसहारा की तरह एकदम। उनको कोई भी ना सुखी मतलब कोई भी फायदा नहीं होता था दवाई खाने से। और उनको हम फिर RL डॉक्टर के पास दिखाए थे। वो हमें बोले कि आपको सुरेश हॉस्पिटल के पास जाना पड़ेगा। सुरेश हॉस्पिटल भेजे, वहाँ हम गए, फिर रिपोर्ट को दिखाया तो डॉक्टर ने इलाज करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो कहा कि आप लोग इतने दिन से कहाँ थे। और फिर हम बहुत ज़्यादा ही दुखी हो के हम सब रोने लगे। मेरे पापा कहने लगे कि अब हमारा पूरा परिवार उजड़ जाएगा, हम कैसे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे। हम भी रोने लगे कि परमात्मा अब हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, जब मेरी माँ मर जाएगी। ऐसे करके हम बहुत कुछ सोचने लगे। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हेपेटाइटिस भी ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से हम अर्जी करवाए, मतलब अर्जी किए। फिर ना गुरु जी का आदेश आया कि भक्ति करो, ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग परमात्मा की दया से भक्ति करने लगे। फिर जाके ना हेपेटाइटिस भी ठीक हुआ। हम संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा लिए, उससे पहले नाम दीक्षा नहीं लिए थे, उससे पहले का है ये। मेरी मम्मी का नाम मुन्नी यादव है, और डॉक्टर ने कहा था कि आप लास्ट स्टेज में लेके आए हो, इलाज नहीं हो पाएगा करके। फिर ये देखिए, ये इतना नॉर्मल होना चाहिए था, इतना नॉर्मल ना होके इतना हाईएस्ट बढ़ गया, जिसके कारण डॉक्टर बिल्कुल ही मना कर दिया कि आपका इलाज नहीं हो सकता।
फिर हम बहुत दुखी हो गए। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के पास अर्जी किए। फिर गुरुजी ने आदेश दिया, संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि आप भक्ति करते रहो, ठीक हो जाओगे। फिर गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। 7 महीने के अंदर में मेरी मम्मी की रिपोर्ट फिर नेगेटिव आई, जिसमें कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इसमें नेगेटिव बताई गई है। और हेपेटाइटिस भी बिल्कुल ठीक हो चुका, परमात्मा की दया से ठीक हो गया। मैं एक बार स्कूल जा रही थी, स्कूल जाते वक्त मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब लेट हो चुकी थी, बहुत तेज़ी में जा रही थी। तेज़ में जाते हुए ना एक ट्रैक्टर था और मैं इधर से जा रही थी। फिर ठीक उसी वक्त उसको मोड़ना था, वो मोड़ा नहीं, अंधी मोड़ की तरफ मोड़ना था, वो मोड़ा नहीं और वो सीधे की ओर लेते हुए चल रहा था। अब मैं गई, जैसे गई तो वो मोड़ने लगा। उस वक्त उसके जो बड़े से चक्के होते हैं ना ट्रैक्टर के, जहाँ बैठा जाता है, उस चक्के में मेरा पैडल फंस गया साइकिल का, और मैं बिल्कुल ना साइकिल पे बैठे हुए ही नीचे गिर गई। और गिरने के बाद उसके पीछे चक्के पे ना मेरा पूरा क्या बोलते बॉडी आ गया, जिसके उस टाइम मैं संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ली, हे परमात्मा मुझे बचाओ। ठीक उसी वक्त परमात्मा आए और मतलब ऐसे आए और मुझे बचा ली, जैसा लगा कि कोई मुझे उठा लिया हो उसके नीचे से। और वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ गया, मतलब सभी कोई देख के हैरान हो गए कि इस बच्ची का जान कैसे बच गया। संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मुझे जीवन दान दिया है। आर्थिक स्थिति हमारी इतनी कमज़ोर थी कि हम खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं रहती थी। हम बहुत ज़्यादा चिंता करते थे कि हमें कहाँ से मिलेगी, कैसे। अब पापा का मतलब कमाई तो करते थे, पापा अच्छे से काम करते थे, फिर भी हमें खाने की नहीं मिलती थी, क्योंकि ना इतना ज़्यादा कलेश भी था। कहाँ जाता था पैसा, क्या होता था, कुछ पता नहीं चलता था। सारा पैसा ना मम्मी की बीमारी में चले जाती थी, जिसके कारण हम बहुत ही ज़्यादा लाचार हो चुके थे। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही आने से हम ठीक हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं कि नीचे पीली पट्टी चलती है, वहाँ से आप नंबर नोट करके कांटेक्ट करके आप ना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। को समाधान बताओ स्वामी जी। स्वामी जी ने फिर कारण बताया कि तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेने कोई गलती की थी जिस कारण से तू दानक बना, दुल्हा बन गया। उसने कहा मालिक वो तो हुई सो हुई, हे प्रभु 10 की नो 10 पायो, मैंने तो किराया 100 भर लिया। आरत हो तू दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ऐसा विधि बताओ मेरा बच्चा कुछ खा ले। रामानंद युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। रामानंद जी बता रहे हैं कि तेरा पुत्र कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये पिछले जन्म का कोई अच्छा विद्वान पुरुष है, इसलिए इसने पिछली अपनी जानकारी है। और बचिया जाही बैल नहीं लागा यानी कंवारी गाय, जिसने बैल ने कभी टच भी नहीं किया है। और सो ले ठाड करते ही आगा, उसके सामने ले आओ। दूध चले ते ही थनते, दूध धरो छिपाई, अक्षुधावंत जब होवे ताके दे खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राग छिपाई का हो नहीं जाना। अब यहाँ जो दूत शब्द है ना, ये कबीर पंथियों ने ये बहुत सा और विवरण था कि कौन आया था, कैसे आया था। शंकर भगवान आए थे, तो कबीर पंथी केवल कबीर जी को एक संत मानते रहे और शंकर जी को उसमें मिलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अलग पंथ बना बैठे। तो इस करके इन्होंने यहाँ कुछ कटिंग कर दी। अब इसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने की है। पुण्यात्मा
ये अध्यात्म ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान को आपने ढंग से समझना पड़ेगा। जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं 12-13 वर्ष 16 वर्ष, और केवल एक पेट के लिए उसको पूरा फ्री भी कर देते हैं, खर्चा भी खूब लगाते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, और फिर भी उसको रोटी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं। तो उसके लिए हम इतना डिवोट करें क्योंकि हमने सिर्फ वो रोजी रोटी ये देखी आज तक। अब हमने मोक्ष के लिए इतना समय लगाना पड़ेगा, इसी तरह हमने कुर्बान होना पड़ेगा, और इसमें हानि नहीं, इसमें मोक्ष होगा ही होगा। इसके लिए हमने समय भी चाहिए, ये कथा भी सुननी चाहिए। और जैसे गुरुदेव बतावे, यानी आध्यात्मिक टीचर, आप विद्यार्थी, जैसे गुरुजी बताऊं वैसे फिर करके देखे, और तभी सफलता होती है। अब आपने देखा कि परमात्मा ने यह लीला करी और कुंवारी गाय का दूध पिया। अब जैसे आपको बताया था कि शिव आए थे शिवपुरी थे और उनको फिर दूध पिला। अब यही चित्रण आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है। अब ये जो कबीर सागर में इन्होंने कुछ 600 वर्ष के अंदर जो कुछ त्रुटियां अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर दी, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं, मालिक की दया से शेष रहेगी। तो अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, ये 12 पंथ चलेंगे मेरे नाम ते कबीर पंथ, उनमें जो प्रथम आवेगा जैसे चूड़ामणि जी, वो तो अच्छी आत्मा होगा। आगे चल के उसके उत्तराधिकारी बस नकली हो जाएंगे सारे, काल प्रेरणा से और ही साधना शुरू कर देंगे। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी तो परमात्मा की आत्मा थी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी 12वें पंथ में जो आए हैं, लेकिन आगे उनके उत्तराधिकारियों को कहेगा पता नहीं, ना परमात्मा की वाणी को समझ सके और ना ही मालिक ने समझाना उचित समझा था कि ये भेद अभी खोलना नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ बोल बोल के लिखवा दी, और आज इस दास को वो सद्बुद्धि दे दी कि इन गूढ़ रहस्यों को आपको समझा दिया। तो उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कही थी क्या होगा कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ होगा, उसमें मेरे महिमा की वाणी फिर प्रकट होएगी, मेरा सच्चा ज्ञान फिर प्रकट होगा 12वें पंथ के प्रवर्तक के द्वारा। लेकिन उस 12वें पंथ के अनुयायी भी उस मार्ग को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसलिए गरीबदास साहिब जी ने भी बोल बोल के लिखवा दी, उसका निर्णय नहीं दिया किसी को। इसलिए कहा कि ये सब पढ़ेंगे गरीबदास वाले पंथ के भी लोग, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे। असंग जन्म सतलोक नहीं जा सकते, उनमें अभिमान हो जाएगा कि हम गरीबदास अनुयायी हैं, हमारे वो ग्रंथ हमने अच्छी तरह आता है, उनको कक्का नहीं पता ये दास उसमें रह क्या है। अब ये प्रमाण भी कबीर सागर से देंगे आपको। ये कबीर सागर है जो अभी आपको दिखाया था, और खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई से। ज्ञान सागर, इसका अनुवादक भी कबीर पंथी है, इसका जो संशोधक है कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परीक्षित। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, ये आपको दिखाई दिया। ये कबीर वाणी है, और प्रश्न नंबर ये 136 पे क्या बताया है, 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ जैसे चले कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया कि 12 पंथ ऐसे होंगे। वो प्रथम 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। इन 12 पंथों में ये प्राणी कोई भी पार नहीं हो पाएगा। अब क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही संदेश रहेगा, और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा। यह लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा, लेकिन यहाँ इन्होंने कबीर पंथियों ने गड़बड़ कर दी कि चूड़ामणि जी को काल का पंथ नहीं बताना चाहते थे, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। प्रथम जग में जागो बरमावे, और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे।
दूसर सूरत गोपाल होई, मूल निरंजन, फिर पंथ टकसार पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये जीवा पंथ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहाँ इन्होंने क्लियर लिखा है कबीर चरित्र बोध में, ये है बोध सागर में कबीर चरित्र बोध, और यहां से शुरू किया है ये 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 है, ये ब्रैकेट वाले पृष्ठ हैं ये। और बोध सागर यहां लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, नारायण दास जी का पंथ। ये नारायण दास जी कबीर पंथ में नहीं थे, ये तो श्री कृष्ण पंथ में था। यहाँ था चूड़ामणि का पंथ, इन्होंने जान के काट दिया। यागो दास जी का पंथ, जागो को है यागो पंथ। और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसार पंथ, फिर भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमालिया पंथ, राम कबीर पंथ, 12वां है गरीबदास पंथ। ये छुड़ाने वाले जो हुए हैं गरीबदास जी, वो 12वें पंथ में। अब फिर हम यहाँ आते हैं, अब फिर आते हैं कबीर वाणी के 136 पृष्ठ पे, कबीर सागर में। अब फिर देखते हैं द्वादश पंथ चलो शोभित। हम यहाँ तक आ जाते हैं कि प्रथम जागू का, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन है, ये चौथा, और 5वां टकसार पंथ। धीरे हम यहाँ आते हैं फिर जैसे सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, फिर ज्ञानी पंथ, और फिर 10वां 11वां वैसे परम धाम की वाणी पंथ। अब ये है 12वां संवत 1775 हुई, ये 1774 है, क्योंकि संवत 1774 सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। ये तो 12वां पंथ है, ये गरीबदास वाला पंथ। और संवत 1774 समझो 74 हुई, इसमें लिखा 75 है। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। गरीबदास जी की वाणी से ये समझावेंगे, असंग जन्म वो ठिकाना नहीं जा सकते। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, 12वें पंथ गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर प्रगट होएगी। जो कबीर सागर में त्रुटियां हो गई होंगी उनको पुनरावर्ती कर देगी। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। ये गरीबदास पंथ वाले हमारे इस वाणी का निर्णय तो करने की चेष्टा करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मरम नहीं पावें, और ये 12 पंथ हम ही को जावें। साख हमारी लिए जीव समझावें, ये गरीबदास पंथ वाले अन्य। और कहते हैं असंग जन्म वो ठोड़ नहीं पावे, असंग जन्म नहीं जा सकते गरीबदास पंथ वाले। और दो नकली कबीर पंथी जो और हैं वो भी। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवे। वो 12वें पंथ में आगे चल के जो वाणी प्रकट होने के बाद, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। अब दास को भेज दिया, दास इस गरीबदास पंथ से संबंधित है। और 12वें पंथ वो खुद नहीं आए, परमात्मा दास को भेज दिया और वही पावर दे दी, अपने काम तो वही कर रहे हैं मालिक की। 12वें पंथ में हम आएंगे, फिर ये नसब न देखेंगे, सबको एक पंथ बना देंगे, सारा सब ज्ञान के आधार से समझ जाएंगे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। कहता है कलयुग का प्रथम चरण वो होगा, मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा। मगर से प्रथम चरण कलयुग का, 3 चरण बताएं कलयुग के, ये बिचला चरण अब चल रहा है। ये प्रथम चरण कलयुग निराणा, और तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बौद्धों पंडित काजी। अब यहां जाता है 5505, तब ये शब्द होगा साचा। 5505 जब वर्ष चले जाएंगे कलयुग के, तब ये साचा होगा। सन 2006 में समझ लो ये साचा हो गया, और आज ये 2011 चल रहा था। अब इसका कारण क्या था?
कि कलयुग के जब 5505 वर्ष लगभग बीत जाएंगे, उस समय यो मेरी आज की बोली हुई वाणी 1398 से 1518 के बीच में जो वाणी बोली है परमात्मा ने वचन कहे हैं कि ये उस समय सच्ची होंगी। आज ना दच्चा किससे कहे, आज किसी को विश्वास नहीं होगा इसका, उस समय ये सच्ची होगी ये बात जो मैं आज बोल रहा हूं। और तब तक कहा धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। ये देखिएगा आगे इसी में, धर्मदास मोरी लाख दुहाई 5505 तब ये शब्द होगा साचा। इस इतने समय कलियों के बीत जाएंगे तब। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द जिन बाहर ना जाई, ये ना जाई गलत प्रिंट गलत हो रहा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई यानी गुप्त तुम राखो। मूल ज्ञान जो बार पर ही, बिजली पीढ़ी हंस वंश नीतर ही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही राख्या, गोए राख्या, गोए मन गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब यहाँ दिखाते हैं आपको 134 पृष्ठ पे सारा निर्णय दे रखा परमात्मा ने, कबीर वाणी 134 पृष्ठ पे। अब यहाँ बताए हैं 13 वंश, 12 तो ये थे काल के जाल में रह गए सारे। प्रथम वंश उत्तम, ये नारायण वो है चूड़ामणि जी। दूसरे ये जागू, और ये तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब यहाँ आ जाते हैं कि 12वें वंश 12वां गरीबदास वाला ही हो। 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, यानी 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी से मेरा फिर से उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगी उनसे। और कहते हैं 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, 13वां वंश मेरा आवेगा दास, कहते सब अज्ञान हटाया जाएगा, उसमें सब मिटे सकल अंधियारा। और एती दगा काल समाई, और तत्व बिंदु की टेक रह जाई। काल इतनी दगा करेगा फिर भी हमारे तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, यानी उस समय तक इसको छुपा के रखना है। जो 13वां वंश इस दास की तरफ संकेत है, अंडरस्टूड है। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा, अब सब झंझट, ये सब अज्ञान हट जाएगा। नौमण सूत उरजिया, ऋषि रहे जखमारे। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझन दूजी बार। अब जो आपको प्रसंग दास सिद्ध करना चाहता था कि परमात्मा जब आता है वो ऐसी लीला करता है, और वो लीला किसने की है? कबीर परमेश्वर ने, जिसके वेद गुण गाते हैं। और परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ। ये वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, और ये वेद मेरी महिमा ही बढ़ा रहे हैं। आपको और थोड़ा वेद दिखाते हैं। एक पुण्यात्मा, हमने परमात्मा को पहचानना है। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है, इसको दिखाते कहाँ से है। ये यहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक पंडिता राकेश रानी, और यहाँ से छपा प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली, दानंद संस्थान। इसमें मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 49 49 में प्रथम ही मंत्र में लिखा है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूक्त 49, ये 49 का प्रथम मंत्र। इस प्रथम मंत्र में लिखा है, परमात्मा कहते हैं मैं स्तुति करने वाले को, जो सत्साधना करते हैं उसको, सनातन ऐश्वर्य निवास योग लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। मैं स्तुति करने वाले को सनातन ऐश्वर्य, यानी जो सदा रहने वाला, कभी नाश ना हो, मोक्ष निवास योग्य लोक यानी सतलोक, पूर्ण मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करता हूँ। अहम ब्रह्म कर्णवम करणम
मैंने ब्रह्म नहीं, मैंने ब्रह्म को उत्पन्न किया, इन्होंने वेद लिख दिया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, राजा का अर्थ विधान नहीं होता, संविधान नहीं होता। मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूँ, काल की उत्पत्ति मैं ही करता हूँ ब्रह्म की। और जो वेदों में महिमा है, यह वेद मेरी ही महिमा की वृद्धि करता है। यज्ञदान सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूँ, यानी तुम्हें रास्ता भी मैं दिखाता हूँ जो मेरी शरण में आ जाते हो। और वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अब क्या बताते हैं, अब ये सारे प्रमाण हो गए कि कबीर परमात्मा, वेदों में लिखा कि परमात्मा कहता है कि मेरा भेद है वेदों में पूरा, और ब्रह्म की उत्पत्ति मैंने की, काल की, इस ब्रह्म की। और वही खुद अपने सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मन्ना वेदन के माही। यानी जिस इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, लेकिन महिमा मेरी ही है सारी। दर्शकों, अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 को देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों का मर्दन करता हुआ, उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, वह परमात्मा कवि सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। दर्शकों, इस अनुवाद में कबीर का अर्थ सर्वज्ञ किया है। यहाँ सर्वज्ञ तो परमात्मा का गुण है। यहाँ परमात्मा का असली नाम लिखना पड़ेगा, जिसकी महिमा इस वेद मंत्र में बताई जा रही है। उस परमात्मा का नाम न लिखने के कारण आज तक भ्रम फैला हुआ है। इसीलिए कोई तो विष्णु जी को परमात्मा बता रहा है, कोई ब्रह्मा को परमात्मा बता रहा है, कोई शिव जी को परमात्मा बता रहा है, लेकिन वेदों में बताए गए परमात्मा के लक्षण इन देवताओं पर तो बिल्कुल खरे नहीं उतरते। वेदों में बताए गए परमात्मा के लक्षण तो केवल काशी में आए उस कबीर जुलाहे पर खरे उतरते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो कबीर का अर्थ, जो ये सर्वज्ञ किया है, ये गलत है, बल्कि इसको परमात्मा के वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा कर दिया जाए तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वेदों में बताए गए परमात्मा के लक्षण इसी काशी वाले कबीर जुलाहे पर खरे उतरते हैं। इसे आपको वेदों से ही आगे इस एपिसोड में सिद्ध करेंगे। दर्शकों, यदि रामचरितमानस यानी रामायण के बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 1 और 2 का अनुवाद वेदों के अनुवाद की तरह करें तो इस प्रकार होगा। आइए पहले इस चौपाई को एक बार फिर पढ़ते हैं। दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 1, जिसमें लिखा है कि काल भगवान के पद राजीव यानी चरण कमलों का तो वर्णी न जाहि यानी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। काल भगवान के बाम भाग यानी बाएं भाग में अनुकूला यानी सदा अनुकूल रहने वाली छवि निधि शोभा की राशि आदि शक्ति यानी काल भगवान की पत्नी जगमूला अर्थात प्रकृति यानी देवी दुर्गा सुशोभित है। अब चौपाई नंबर 2 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है जासु अंश यानी जिस देवी दुर्गा के अंश से गुण खानी यानी गुणों की खान अगणित यानी अनेकों लच्छे विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, उमा शिव जी की पत्नी पार्वती, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री यानी त्रिदेवों की पत्नियां उपजेही उत्पन्न होती है, तथा जासु जिनकी भ्रिकुटी विलास यानी भोह के इशारे से जग होई यानी जगत की रचना होती है, वह देवी दुर्गा काल ब्रह्म के बाएं भाग में ऐसे बैठी दिखाई देती है जैसे राम यानी बकरे के बाम भाग यानी बाएं भाग में सीता खूड यानी हल्के चलने से बनी रेखा दिशे दिखाई देती है। दर्शकों, संस्कृत में राम का अर्थ बकरा और सीता का अर्थ खूड भी होता है, लेकिन मूल संस्कृत में लिखा है कि राम बाम दिशि सीता सोई, यानी स्पष्ट है कि राम के बाम भाग में सीता जी बैठी दिखाई देती हैं। विचारणीय विषय है कि राम के बाम भाग में खूड कैसे बैठेगा। दर्शकों, तत्वज्ञानी संत ही तत्वज्ञान के आधार पर ये निर्णय करके बताते हैं कि यहाँ सीता किसी खूड का जिक्र नहीं है। दर्शकों, अब कोई समझदार व्यक्ति जिसको रामायण की पूरी कथा का ज्ञान होगा, वह तो यही कहेगा कि अनुवादकर्ता ने यहाँ राम शब्द का अर्थ बकरा तथा सीता का अर्थ खूड बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर किसी बकरे या हल चलाने से बने खूड का प्रसंग नहीं है।
यहाँ तो श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जिक्र है, इसलिए इस चौपाई में राम का अर्थ श्री राम करना था और सीता का अर्थ श्री राम की पत्नी सीता करना ही उचित है। इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 में परमात्मा की महिमा है। किसी कवि की महिमा का वर्णन नहीं है, इसमें तो परमात्मा का प्रसंग है, इसलिए कबीर का अर्थ काव्यकार या सर्वज्ञ करना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कबीर का अर्थ कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर करना ही उचित है, जो वास्तव में सत्य भी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अब आपके इस भ्रम को भी जड़ से समाप्त करने जा रहे हैं कि वेदों में वर्णित ये कबीर काशी वाला जुलाहा कबीर कैसे हो सकता है। तो आइए आपको वेदों में वर्णित परमात्मा के लक्षणों से रूबरू करवाते हैं और प्रमाणित करते हैं कि वो सभी लक्षण किस प्रकार काशी वाले उस जुलाहे पर पूर्ण तौर पर खरे उतरते हैं, जो वास्तव में सृष्टि का रचनाकार है, जिसका नाम कबीर देव अर्थात कबीर साहिब है। दर्शकों, हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप कृपया एक बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सर्व पवित्र धर्म शास्त्रों के आधार पर तैयार की गई संपूर्ण सृष्टि रचना की वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो सर्व सृष्टि का रचनाकार कौन है। उस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दर्शकों, जो सृष्टि का रचनाकार होगा निसंदेह वो पूर्ण परमात्मा ही होगा। अब सवाल ये है कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उसके क्या लक्षण है। आइए आपको वेदों में, गीता जी में तथा अन्य शास्त्रों में बताए गए परमात्मा के लक्षणों से परिचित करवाते हैं और देखते हैं ये लक्षण किस पर खरे उतरते हैं। लक्षण नंबर 1, परमात्मा अपने साधक के पापों को नाश करने वाला है तथा अपने साधक को स्वस्थ करके उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करने वाला है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2। इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है। कबीर जी ने पाप कर्मों से पीड़ित दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के जलन के रोग को खत्म किया, जिस रोग का इलाज उन्होंने सब पीर फकीरों से करवा लिया था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। लेकिन कबीर परमात्मा के आशीर्वाद देने मात्र से उनका जलन का रोग खत्म हो गया था। कबीर परमात्मा की लीलाओं में देखने को मिलता है कि उन्होंने कमाल को जीवित किया, कमाली नाम की लड़की को जीवित किया, सेऊ नाम के लड़के को जीवित किया, रामानंद ब्राह्मण को जीवित किया, जिसकी गर्दन दिल्ली के बादशाह ने काट दी थी। इस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं ये दर्शाती हैं कि कबीर परमात्मा ने पाप कर्मों से ग्रस्त लोगों के पाप कर्म नष्ट किए और उनको स्वस्थ किया। लक्षण नंबर 2, परमात्मा पूर्ण मोक्षदायक है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 2 तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 3। इन मंत्रों में बताए गए लक्षणों से सिद्ध होता है कि पूर्ण मोक्षदायक कबीर अर्थात कबीर परमात्मा ही है। ये लक्षण उन्हीं पर खरा उतरता है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि हम नानक सुल्तानी तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। यानी मुझे, नानक देव जी को और इब्राहिम सुल्तान व दादू जी को मोक्ष प्रदान करने वाला कोई और नहीं बल्कि काशी में प्रकट होने वाला कबीर ही है। लक्षण नंबर 3, परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है तथा सब ब्रह्मांडों के ऊपर वाले भाग में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27। इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण कबीर साहिब जी पर खरा उतरता है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस गरीबदास जी ने जब कबीर जी को सब लोकों के ऊपर विराजमान देखा तो अपने सूक्ष्म वेद में वाणी लिखी कि अर्श कुर्स पर सफेद गुमट है, जहां कबीर सतगुरु का डेरा। लक्षण नंबर 4, परमात्मा ऊपर के जिस लोक में विराजमान है वहां राजा के समान बैठा है, यानी देखने में राजा के समान दर्शनीय है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1। दर्शकों, इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर ही खरा उतरता है। गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि आदि रमैनी अदली सारा, जा दिन होते धूं धूं कारा, सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा, हम होते तख्त कबीर खवासा। लक्षण नंबर 5, परमात्मा यथार्थ
अध्यात्म ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद बताने के लिए अपने धाम से सहशरीर चलकर पृथ्वी पर आता है तथा अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों का मर्दन करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26। दर्शकों, इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर खरा उतरता है। कबीर जी अपना ज्ञान बताने के लिए समय समय पर पृथ्वी लोक पर आए हैं और नानक जी, गरीबदास जी, धर्मदास जी, मल्लूक दास जी और संत रामपाल जी महाराज जैसे महापुरुषों को आकर मिले हैं। लक्षण नंबर 6। परमात्मा शिशु रूप में सहशरीर पृथ्वी पर जाकर जल के अंदर कमल के फूल पर प्रकट होता है, जिस कारण से उसे सत्यनारायण भी कहा जाता है। सत्यनारायण का मतलब है वह अविनाशी परमात्मा जो जल में आकर प्रकट होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 तथा कबीर वाणी में प्रमाण है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर जलज माही पोड़न किए दोहु दीनन के पीर। दर्शकों, यह लक्षण भी कबीर परमात्मा काशी वाले जुलाहे पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सर्व विदित है कि कबीर जी नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति को लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर जल में मिले थे। कुछ लोग विष्णु जी को सत्यनारायण मानते हैं, जबकि विष्णु जी ना तो अविनाशी हैं और ना ही जल पर प्रकट होते हैं, बल्कि वह तो वहीं जल में ही रहते हैं। इसलिए सत्यनारायण विष्णु जी नहीं बल्कि कबीर परमात्मा है। लक्षण नंबर 7। परमात्मा जब शिशु रूप में लीला करने आता है तब उसकी परवरिश की लीला कवारी गायों के दूध से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9। कबीर परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। यही प्रमाण कबीर सागर के ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पर भी है। यही प्रमाण अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद में भी है कि कबीर परमात्मा की परवरिश अन्न ब्याही गाय के दूध से होती है, अर्थात कुंवारी गाय के दूध से होती है। दर्शकों, कबीर सागर और वेदों के इन मंत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि कबीर जी के जीवन परिचय में प्रमाण मिलता है कि शिशु रूप में उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। लक्षण नंबर 8। परम अक्षर ब्रह्म यानी वह परमात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार अपने मुख कमल से कवियों की तरह दोहों, चौपाइयों, साखियों, शब्दों और कविताओं के द्वारा अपने मुख कमल से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वह होता परम अक्षर ब्रह्म ही है, यानी वह कबीर परमेश्वर ही है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16, 17, 18। इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है, क्योंकि इसी कबीर काशी वाले जुलाहे ने कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने ज्ञान को कविताओं, दोहों और साखियों के माध्यम से अपने मुख कमल से बताया था, जिस कारण लोग उन्हें आज भी एक प्रसिद्ध कवि मानते हैं। लक्षण नंबर 9। परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है तथा वाणी बोल बोलकर साधकों को अपनी भक्ति करने की प्रेरणा करता है तथा मोक्ष मार्ग के यथार्थ नामों का ज्ञान करवाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32। ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कबीर जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान कवियों की तरह कबीर वाणी में घूम घूम कर भक्त समाज को बताया था तथा अपनी वाणियों के माध्यम से यथार्थ नामों को उजागर किया था। संत गरीब दास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। लक्षण नंबर 10। परमात्मा की मृत्यु नहीं होती, वह सह शरीर अपने सनातन परम धाम को चला जाता है, क्योंकि वह अविनाशी होता है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, गीता अध्याय 15 श्लोक 17। इन मंत्रों में बताए गए ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरे उतरते हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा जी ही सन 1398 ईस्वी में सशरीर आए थे और सन 1518 ईस्वी में सशरीर अपने सनातन परम धाम यानी सतलोक को चले गए थे। यही प्रमाण कबीर सागर के अगम निगम बोध खंड में पृष्ठ 41 पर भी है। न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा,
तहां जुलाहे ने पाया। गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीब जिंदा योगी जगत गुरु, मालिक मुर्शिद पीर, दोहु दीन झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। जातू कहें कबीर जुलाहा, सब गतिपूर्ण अगम अगाहा। लक्षण नंबर 11, पूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ होता है। दर्शकों, कबीर परमात्मा सर्वज्ञ थे, क्योंकि कबीर जी ने सर्व सृष्टि की रचना की है। इसीलिए उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी बहुत विस्तार के साथ अपनी कबीर वाणी में कबीर सागर नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध करवा रखी है। इससे हम कह सकते हैं कि कबीर जी सर्वज्ञ हैं। वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को अपनी कबीर वाणी में बताया है तथा भूत भविष्य वर्तमान में घटने वाली घटनाओं को अपनी कबीर वाणी में बहुत विस्तार से बताया है। कबीर परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले ही कबीर सागर के बोध सागर के ज्ञान बोध अध्याय के पृष्ठ 22 पर बता दिया था कि 3 पुत्र अष्टांगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा है। जबकि आज तक हमारे धर्मगुरु हमको यही बताते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई रचयिता नहीं है। उनको एक साधारण कवि व अनपढ़ जुलाहा मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने सदग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया कि कबीर जी सर्वज्ञ थे। उन्होंने जो कबीर सागर में बोला वही देवी भागवत में ज्यों का त्यों प्रमाणित है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा जी हैं। इसी प्रकार कबीर साहिब जी ने कबीर सागर के बोध सागर के कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ 136 पर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोए। अर्थात गरीबदास जी महाराज के जन्म की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि गरीबदास जी महाराज का जन्म संवत 1774 में ही हुआ है। क्योंकि कबीर सागर के बोध सागर के कबीर चरित्र अध्याय के पृष्ठ 1870 पर अपने नाम से चलने वाले 12 पंथों के बारे में भी पहले ही बता दिया था, जिसमें बताया गया है कि उनमें एक पंथ गरीबदास जी महाराज का भी होगा। और ये बात सभी जानते हैं कि कबीर साहिब जी के नाम से गरीबदास जी महाराज का पंथ चल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि कबीर साहिब जी भूत और भविष्य की भी जानने वाले थे। इसी प्रकार परमात्मा के लक्षण में आता है कि वो अंतर्यामी होता है। कबीर साहिब जी अंतर्यामी थे क्योंकि उन्होंने स्वामी रामानंद जी के मन की बात को जानकर उनका भ्रम खंडन किया था। स्वामी रामानंद जी, जो कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने कबीर जी को कहा था कि मन की पूजा तुम लखी, मुकट माल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, कौन वर्ण क्या भेष। अर्थात हे कबीर परमात्मा, आपने मेरे मन की बात को बता दिया। आप किस नीच वर्ण में प्रकट हुए हैं और कैसी आपने वेशभूषा बना रखी है। आपकी लीला को कौन समझ सकता है। आप स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। लक्षण नंबर 12, पूर्ण परमात्मा सतचरित्र वाला होता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 4। कबीर परमात्मा का चरित्र बिल्कुल पाक साफ है, वे सतचरित्र वाले हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जिस काशी वाले जुलाहे को कबीर परमात्मा बताया है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल ठोस प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब ये दास फिर उसी टॉपिक पर आता है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी प्रकट हुई, उन्होंने उसकी पूर्ति की है। कबीर सागर में भी छुपी नहीं रही बात कि वो कह रहे रामानंद जी ने कहा नहीं, ये दूत शब्द बीच में है। वो कहते उन्हें पता नहीं था वो कौन था, भगवान का भेजा हुआ कोई दूत आया था। वो बता गया कुंवारी गाय थपकी मार देगी। तो यहाँ रामानंद जी ने कहा कि उन्होंने कबीर सागर में लिखा है कि बछिया जाए बैल नहीं लागा, वो गाय लाओ जो अनटच हो, कुंवारी गाय हो। और यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को गोदी में ले लिया भगवान शिव जी ने। और शिव उतरे शिवपुरी से चल कर आए और वहाँ बच्चे को गोद में लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम में,
धन मोमिन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। दोनों भगवानों की जब नजर से मैं मिली तो शिव जी समझ गए ये कोई परम शक्ति है, बड़ा सिद्ध पुरुष है, इतनी नवीना ज्ञान है कि ये कौन थे। फिर जैसे परमात्मा ने आदेश दिया, कहा शंकर भगवान से कि ऐसे ऐसे इनको कहो कुंवारी गायें लावें और उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। तो गरीबदास जी कहते अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। तो इससे सिद्ध हो गया कि कबीर सागर बता रहे हैं, कबीर साहब की जो लीला पुरातन है। और फिर परमात्मा गरीबदास साहब जी को मिले, अपनी महिमा अनुसार आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। फिर उन श्रेष्ठ आत्माओं में से जिनको परमात्मा मिले थे, गरीबदास जी ने यही बताया है कि परमात्मा ने कुंवारी गाय का, बिना ब्याई गाय का दूध पिया। तो अब ये कंसेप्ट ये क्लियर करना चाहता है दास कि कबीर इज गॉड। सभी सदग्रंथ उनका समर्थन कर रहे हैं और आंखों देखा संत बता रहे हैं। गरीबदास जी कहते हम सुल्तानी नानक तारे दादों को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर होया। ये अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਣ ਖੁਰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲਈ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਨ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਤੋਂ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਔਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਮੰਗਵਾਈ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਈ, ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਸੀਗੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਏ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਜੀ। ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 24 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਹੀ ਸੂਰਤ ਮਲੁੱਕੀ ਵੇਸ ਹੋ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ, ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਜੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ 721 ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਦੋਦਰ ਕੂਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇ ਐ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੰਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ 5 ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿ 5 ਨਾਮ ਕਾਲ ਕੇ ਜਾਣੋ, 5 ਨਾਮ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 3 ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੀਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਤਤ ਸਤ ਤ੍ਰਿਵਿਦੇ ਸਿਮਰਤੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 3 ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ 3 ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਭ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ। ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।